नमस्कार नमस्कार, मेरा नाम है राजीव कुमार बजाज यानी आरकेबी और मैं हूं इस वक्त एडवोकेट प्रदीप नाम्बियार जी के साथ। प्रदीप जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। और प्रदीप जी और मैं, हम दोनों कहाँ हैं? नेशन नाउ पर। नेशन नाउ हमेशा हमेशा आपके साथ। आप सब लोगों को जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम। वंदे मातरम। So Pradeep ji, the Prime Minister has deputed people like Shashi Tharoor Sahab, our Shrikant Shinde, other people, Supriya Sule to go all over the world Yes. to show A, India's unity, and B, to destroy all the lies which have been told by Pakistan at the behest of China. बिल्कुल सर। Gee. So all that I'm saying is, which is rather good, because if you remember in 1994, Prime Minister P.V. Narasimha Rao did exactly the same thing. Exactly. P.V. Narasimha Rao जी ने बिल्कुल वैसे ही किया था। अटल बिहारी वाजपेयी जी को जो डेलीगेशन जानी थी UNHCR में, यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स कमीशन में, जहां पर एक कश्मीर के ऊपर पाकिस्तान ने रेजोल्यूशन पास करवाना था हिंदुस्तान के खिलाफ, वहां पर अटल बिहारी वाजपेयी जी को उन्होंने हेड बनाया था डेलीगेशन का, और उस वक्त के जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स थे सलमान खुर्शीद, वो उनके डेप्यूटी थे। बिल्कुल। एंड देयर एंटायर रेजोल्यूशन वाज डिफीटेड, all thanks to the combined efforts of just about everybody, and that's exactly what has happened right now. And what I am shocked about, by the way, is that there are people, maybe I'll name them later on in the show, who are saying कि देखो बीजेपी के पास कोई टैलेंट ही नहीं है इसलिए इन लोगों को अपॉइंट किया जा रहा है। तो आपके कहने के मुताबिक उस वक्त नरसिम्हा राव जी के पास कोई टैलेंट नहीं था कांग्रेस में? मतलब आप क्या बोल रहे हैं? बट टुडे, आज इस प्रकार से आप देखो कि India has taken a bold step forward. They said, we are giving you the list of terrorists in Pakistan. We want you to hand over those terrorists to us. Now, this is never happened. This kind of bravado from the Indian side is never seen. This is what we have asked them. They said, we want these people among the list. The rumors are, the facts are, Dawood is there, Hafiz Syed is there, Zakir Rahman Lakhvi is there. So you got a lot of people who were actual terrorists, designated terrorists, and are in Pakistan, seen openly moving around. And India has said, we want them back here. We are giving you the list we want. So this and I'll tell you what, there's a guy called Mehdi Hasan. I don't know whether you've seen him. Earlier he used to be with Al Jazeera, later on in CNBC. Now he has his own show somewhere or the other. Where does he do it? I'm not sure. But he's no friend of India's. Let's be very clear. Mehdi Hasan is no friend of India. In fact, when he was talking to the former Minister of State for External Affairs, Hina Rabani Khan, he said, we are seeing this chap, this Hafiz Syed, moving around absolutely openly, without any freedom, without any this. He's the head of what, Lashkar-e-Toiba, or whatever the hell it is, and so on and so forth. It's so this reply of yours that you know, Pakistan has nothing to do with it is absolutely ludicrous. You've got all these terrorists all over the place. What do you expect India to do? And that coming from let me tell you, somebody like Mehdi Hasan. Yes. And number two, there's a guy called Cheema Saab. अपने एक पाकिस्तान के जर्नलिस्ट है चीमा साहब। Yes. उनका अगर आप एक सुने तो उन्होंने ये कहा है कि भाई देखिए, पूरी दुनिया में उन्होंने ये कहा है, और ये सुनने वाली बात है प्रदीप जी। I'm sure we've got Bharat Soni Saab with us. We can have him on. I don't know. I don't see why we should make him wait. Bharat Soni Saab, namaskar. Please come. Bharat Soni Saab. नमस्कार। Namaskar, sir. Oh, lovely to see you, sir. Lovely to see you. Fantastic. Fantastic to see you. अरे मुझे लगता है सीधा फेशियल करा कर आ रहे हैं सर, लगता है फर्स्ट क्लास, बिल्कुल फैंटास्टिक, जबरदस्त I सर। draw a lot of inspiration from Rajiv ji And and Pradeep ji both. Yes, yes. सर प्रदीप जी इज लाइक शाहरुख खान सर, क्या बात कर रहे हैं, देखिए ना, जबरदस्त, बिल्कुल फैंटास्टिक। शाहरुख खान जी को दौड़ा देंगे सर। 100% सर, 100%। अरे बाप रे। सर आई एम एन ओल्ड मैन एज कंपेयर्ड टू द बोथ ऑफ यू। आई एम 105 इयर्स ओल्ड, मैं तो 105 साल का हूँ सर। Absolutely not sir. सर लेकिन एक चीज है, मैं अभी जो बात कर रहा था, माशाल्लाह, आप उसको सुने, क्या नाम है उसका, चीमा, कमर चीमा, हाँ कमर चीमा। I think he's more of an analyst than I think he completed his graduation or post graduation in foreign affairs or whatever. And वो भाई साहब जो हैं वो कहते हैं कि साहब पूरी दुनिया में there are 57 countries with a Muslim majority population, 56 or 57 countries. कहते पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही जगह है जहां पर मुस्लिम्स एंजॉय एक्चुअल डेमोक्रेसी, एंड दैट इज इंडिया। दिस इज अ पाकिस्तानी जर्नलिस्ट सेइंग सर कि सिर्फ एक ही जगह है जहां पर मुस्लिम्स के लिए एक्चुअल डेमोक्रेसी है, एंड दैट आई थिंक इज अ रियल ट्रिब्यूट टू द फाउंडिंग फादर्स ऑफ दिस नेशन, इंक्लूडिंग ऑफ कोर्स भारत रत्न भीमराव अंबेडकर जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू,
our Sardar Patel Sahab, Maulana Azad, Rafi Ahmad Kidwai, and all the others who founded this nation on secularism, and I think that's our strength. अभी आप देखिए शशि थरूर साहब को, श्रीकांत शिंदे साहब को, सुप्रिया सुले जी को, सब लोगों को यूएन वगैरह में भेजा जा रहा है. कनिमोझी. Modi Sahab has taken a book out of P.V. Narasimha Rao ji. P.V. Narasimha Rao ji sent Atal Bihari Vajpayee to lead the delegation at the UN Human Rights Commission, where Pakistan had brought in a resolution on Kashmir against us, and we were able to defeat it because Atal Bihari Vajpayee was the leader of the delegation, along with our own Minister of State for External Affairs at that time, Salman Khurshid. Now that shows the strength of India. The Congress objects here. Congress says Shashi Tharoor is not in our list. आप कैसे लिस्ट में डाल दिए? ये कौन लिस्ट में डाल दिया? बरस वाले, I think Soni साहब will answer that. Oh gosh. बोलिए सोनी साहब. We've got the other guests too. Yes. Lovely. शैलेश पांडे जी नमस्कार. और आरजू खान साहब इतने दिनों के बाद. आरजू खान साहब बहुत बिजी थे सर, बहुत बिजी थे आरजू खान साहब. क्या करें, बिहार के अंदर बहुत काम है. नमस्कार सर जी. बरस सोनी साहब बताएं, शशि थरूर साहब, मुझे लगता है कि मोदी जी ने 1994 के पीवी नरसिम्हा राव साहब ने जो किया था, वो वहां उस किताब का एक पन्ना उन्होंने आज इस्तेमाल किया है. आप बताएं सर. बोलिए भरत सोनी साहब. राजीव जी, प्रदीप जी नमस्कार, और सभी को नमस्कार एक बार फिर से. देखिए, आपने थोड़ी देर पहले जो कहा कि हमारे सेक्युलर देश के लिए अगर दूसरे मुस्लिम लोग का बोलना कि मुस्लिम्स आर मोर सेफ इन इंडिया, ये अपने आप में हमारे डेमोक्रेसी का, हमारे संविधान का एक जीता जागता एप्रिसिएशन है. सर, ये हुई बात हमारे संविधान की, हमारे देश की, और उस देश के अंदर मुसलमानों को जिस प्रकार से हमने सेफ्टी प्रदान की है, और जो फाउंडिंग फादर्स ऑफ द नेशन हमारे जो थे, उन लोगों ने जो सोचा था वो एग्जैक्टली वैसे हुआ है, ऐसे मैं मानता हूं. अभी आता हूं शशि थरूर जी के बारे में. तो शशि थरूर जी अगर डेलीगेशन में इंक्लूड हुए तो अच्छा ही है. रखेंगे, देश का मजबूती से रखेंगे. और कांग्रेस ने भी हमारी लिस्ट भेजी है, उसमें शायद उनका नाम छूट गया हो या उनका नाम नहीं डाला गया हो, तो उसके लिए रीजन होगा, वो हमारे नेशनल स्पोक्सपर्सन उस पर रोशनी डाल सकते हैं जी. But the only thing is, one of the reasons why Shashi Tharoor was selected, Dr. Shashi Tharoor साहब को सिलेक्ट इसलिए किया गया because he had served in the UN for 15 years. 15 साल तक वो यूनाइटेड नेशन में थे सर. He was deputy chairman, so he's very well equipped to deal with it. But one thing is there, एक चीज है, हमारे देश की जो अखंडता है और जो एकता है और जो गैर सांप्रदायिक जो हमारा देश है, माशाल्लाह, I think this is one more example of that we are so united in front of the world, which is fantastic by the way. और जिस तरीके से पूरा देश इकट्ठा है ना अभी इस क्राइसिस में, सर जबरदस्त. I get goosebumps each time I see this. This is fantastic. सॉरी साहब, वीपी वाइस प्रेसिडेंट धनखड़ साहब ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर एक मिसाल है पूरा दुनिया के लिए. मिसाल है बिकॉज ही कंपेयर्स दिस द ओसामा बिन लैडेन को जिस प्रकार से यूएस फोर्सेस ने जाके पाकिस्तान में मारा था, उसी तरह के ऑपरेशन सिंदूर है. बोले द होल वर्ल्ड शुड एक्लेम इट एंड ही बिलीव्स दैट दिस इज नेक्स्ट टू ओसामा बिन लैडेन किलिंग. हाउ डू यू सी दैट सोनी साहब? बिल्कुल सर, जिस प्रकार से हमारे पूरा विपक्ष और पूरा देश और पूरा देश क्यों पूरा विश्व हमारे देश के साथ इस जो that's an exaggeration. That's an exaggeration. देश और पूरे where am I getting this science from? Can you do something about it please? जो यूनानिमिटी है, हम लोग ऐसे बाहर से जब कभी भी हमारे ऊपर कोई आक्रमण करता है, तब जो हम लोग एकजुट होकर जो सामने वाले का सामना करते हैं, वो सचमुच काबिल तारीफ है. लेकिन उसको कहते हुए ही सर देखिए, जगदीश देवरा जैसे बीजेपी के डिप्टी सीएम और विजय शाह जैसे मध्य प्रदेश के मंत्री, अगर जो डेकोरेटेड आर्मी ऑफिसर कर्नल जो सोफिया कुरैशी है, उनके बारे में जो शब्द बोलते हैं, वो ऑपरेशन सिंदूर को थोड़ा सा हानि है, मुझे ऐसे लगता है. लेकिन अमित शाह जी ने बोला है सर, अमित शाह जी ने उसको संज्ञान में लिया है. अमित शाह जी ने उसको संज्ञान में लिया है और उन्होंने ये कहा है, और उन्होंने क्या कहा, मैं आपको लेटेस्ट बता दूं सर, जो मेरे पास अभी खबर आई है. गृह मंत्री जी ने कहा है कि उसके ऊपर फौरन एक्शन होगा. हम किसी को भी
हम किसी को भी अपनी फौज के साथ खिलवाड़ नहीं करने देंगे, ऐसा अमित शाह साहब ने कहा But है। Soni Saab, it is not only this. You have to say Vijay Shah hai, you got Ram Gopal Yadav hai, you got Manjunath Kota है, जगदीश देवरा, दो बीजेपी का, दो जिस प्रकार से कांग्रेस का भी एमएलए कर्नाटका का, उन्होंने भी कहा कि ये क्या हो रहा है, प्रूफ दो, प्रूफ कहां पर है। तो ये सब पार्टी से हो रहा है भरत सोनी साहब। एंड राम गोपाल वर्मा तो, सॉरी, राम गोपाल यादव जी तो 2 कदम आगे निकले, वो जाति में बात दिए कि मिस्टर एयर चीफ मार्शल यादव है और नियोमिका सिंह जो है वो जादव है। जटाव है। तो सोनी साहब, आई मीन वी आर ऑल एक्सीडिंग आवर ब्रीफ्स। सर एक तो मुझे बड़ी ऑब्जेक्शन है, हेलो एक मिनट, ये हमारे जो आरजू खान साहब हैं इतने दिनों के बाद आए और अकेले अकेले कुछ खा रहे हैं। अरे यहां भी भेजना कुछ यार, क्या खा रहे हो भाई? हम बड़ी भूख क्या लगती है हमें सर, इसकी वजह से। क्या हमें भूख नहीं लगती है क्या हद होती है यार? तो भूख लगती है, जाहिर सी बात है। हाँ तो भेजो ना, मिठाई तो भेजो, कुछ तो भेजो। हाँ सोनी मिठाई साहब, भेजेंगे। सोनी साहब सेना रेस्ट्रेंट के फ्रॉम ऑल जो साइड्स। दौरे का वक्त था उसके लिए हम जरूर मिठाई भेजेंगे। जी बिल्कुल। सोनी साहब, कांग्रेस ऑल्सो हैड, जो मंजुनाथ कोता है वो कांग्रेस के थे, भले जगदीश, राम गोपाल यादव हर सीमा को शायद पार किए। सोनी साहब सर, मंजुनाथ जी ने जो कहा है उसके ऊपर कार्रवाई जरूर होगी, और ऐसे जिस वक्त इस वक्त की घड़ी में जब देश खड़ा है वहां पर ऐसे सब वाकया नहीं करने चाहिए और ऐसे शब्द नहीं बोलने चाहिए। दुरुस्त बात है। तो उनके ऊपर जरूर होगी, एक्शन होगी सर, उनको नहीं होनी भी बख्शा चाहिए। जाएगा। आई एग्री विद यू सर, होनी भी चाहिए। और सब पार्टीज को अपने जितने बिल्कुल भी सर। प्रवक्ता हैं, जितने भी लीडर हैं, जितने भी मंत्री हैं, सबको कह देना चाहिए कि भैया ये सब मत करो यार, ये सब मत करो। क्योंकि मैं आपको बताता हूं, विजय शाह जी, उनके मुंह से निकल गया एक्चुअली, वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग, जो मैंने उनकी स्पीच सुनी है, मैं उनको जानता भी हूं। वो क्या है कि मोदी जी की तारीफ करने के चक्कर में, उनके वो भजन गाने में वो पता नहीं क्या बोल गए अपने दिमाग मिलिट्री को। वेरी फ्रैंकली उनको खुद को मालूम नहीं था क्या बोल गए। आई बी वेरी फ्रैंक विद यू, ये तो उनको बाद में रियलाइज हुआ होगा, अरे यार ये बोल गया मैं आपको सीधी बात बता रहा हूं। फैल पांडे जी मैं आपके पास आता हूं, लेकिन पहले क्योंकि बड़े दिनों के बाद आरजू खान जी की शक्ल मेरे सामने आई है, और आरजू खान जी को तो मैं पता नहीं कितनी दिनों से कह रहा हूं यार, ये आरजेडी के हैं, पता नहीं कितने दिनों से कह रहा हूं यार, तुम बॉम्बे आओ, तुम फटाफट सीरियल में काम करो, फटाफट तुम बॉलीवुड में काम करो। क्या कर रहे हो यार तुम वहां पे पटना में बैठ करके, क्या कर रहे हो मुझे समझ में नहीं आ रहा। आरजू खान साहब आप इधर आपके आइए। साथ रूबरू हो रहा हूं सर आरजू खान साहब आप इधर आ जाइए, आप यहाँ पे, आपकी जरूरत है बहुत बॉलीवुड में। मैं आपको सच बता रहा हूँ, देयर आर एटलीस्ट 15 रोल्स वेटिंग फॉर यू ओवर हियर। नहीं मिलते तो मैं दिलवा दूंगा, मैं बोल रहा हूँ आपको। यू हैव अ क्लासिक फेस। और वैसे भी आपने बताया था कि आपका कनेक्शन है फिल्म इंडस्ट्री के साथ, आपका कनेक्शन है, ये भी बताया था आपने। नाजिर हुसैन जो कैरेक्टर आर्टिस्ट हुआ करते थे, जो पहले फौज में हुआ करते थे, फौज से रिटायर होकर के वो यहाँ कैरेक्टर एक्टर बने बॉलीवुड में। जी बिल्कुल। यस यस यस। तो अब आप बताएं सर आरजू खान साहब, क्योंकि क्या है कि इस क्राइसिस के दौरान आपसे हमारी बात नहीं हुई बिल्कुल भी। शैलेश पांडे जी तो आते रहे हैं, भरत सोनी साहब भी आते रहे, भरत सोनी कांग्रेस के, शैलेश पांडे जी बीजेपी के, वो तो आते ही रहते हैं सर, हमारे बड़े अच्छे मित्र हैं सब, और दोनों के दोनों महाराष्ट्र से हैं, मुंबई से हैं। जहां तक आपका सवाल है, आप बताएं कि पटना से क्या व्यू है सर, ओवरऑल क्या व्यू है ऑपरेशन सिंदूर का, और कहां तक हम लोग सफल हुए, और आपके, पूरा खुल के बोलिए सर, और आपके मुताबिक कहां असफल रहे, बोलिए सर प्लीज। जी 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 एकदम सर, मैं उसको बताता हूं। जी बोलिए सर प्लीज। देखिए हकीकत तो ये है, Will somebody please advise आरजू खान साहब on his gyroscope please? वो उनका जो gyro है वो I think it's moving around. continuous calls. Yeah, and I think he's getting hell of a lot of calls. He's in great demand. I told you he's film star material, sir. He should be right here. सर उनको बोल दीजिए ना कि वो कॉल बारिंग कर देना सर अभी हमारी छोड़ के। Let's be very clear. अरे आरजू साहब चलिए, जब भी आरजू साहब वापस आएंगे let's go to him. Let's go straight across to शैलेश पांडे जी. My dear friend शैलेश पांडे जी, शैलेश पांडे जी नंबर 1, सबसे पहले तो मैं चौथी बार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को मुबारकबाद दे रहा हूं कि उन्होंने सीज फायर एक्सेप्ट करी। वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग सर, आज से आईपीएल भी शुरू हो गया सर, आईपीएल स्टार्टेड। 31 एयरपोर्ट जो बंद थे दोबारा चालू हो गए, इंडस्ट्री स्टार्ट अगेन। वन सेकेंड सर, आरजू खान साहब बिफोर वी लूज हिम अगेन, आरजू खान साहब आप जो बोल रहे थे प्लीज बोलिए,
प्लीज। देखिए मैं बड़ी एकदम क्रिस्टल और क्लियर एकदम मैं बात बता रहा हूँ। जी बोलिए सर। ऑपरेशन सिंदूर पे बहुत अच्छा लगा, पूरे देशवासियों को अच्छा लगा, पूरे Fantastic. बिहार प्रदेश के एक एक आवाम को अच्छा लगा। इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है कि हमारी सेना आज से नहीं है, लगातार कई बारों से ऐसा देखा जा चुका है कि हमेशा पाकिस्तान का वो मुंह तोड़ जवाब देती है, हमेशा वो पाकिस्तान का मुंह तोड़ जवाब देती है, पाकिस्तान के नापाक इरादों को वो तोड़ती है, रोकती है और कुचलती है। लेकिन फिर भी पाकिस्तान इतना बदतमीज है कि वो हमेशा अपना सर जो है उठा के आ जाता है, हिंदुस्तान के पास आ जाता है। लेकिन जिस तरीके से पूरे देश ने देखा, एक ब्रीफिंग हुई देश के सत्ता पक्ष और विपक्ष के साथ, हम दोनों लोग जो है सरकार के साथ थे, सरकार के एक एक कदम के साथ थे। तो क्या जब हम पीओके के पास थे, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के पास थे, खुद बलूच आर्मी जो है पाकिस्तान के दो टुकड़े करने पे तुली हुई थी, पाकिस्तान के दो खंड होने वाले थे, दो भाग होने वाले थे। लेकिन एकाएक ट्रंप चचा जी आते हैं और कहते हैं कि देश में अब सीज फायर हो जाएगा। वो क्यों? जो वो हवाला देते हैं वो कहते हैं कि बिजनेस को लेके, व्यापार को लेके, वहां कहीं ना कहीं पूरे देश में गलत मैसेज गया है, क्योंकि देश की सेना लड़ना चाहती थी, देश की आवाम लड़ना चाहती थी, देश की सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों एक साथ थी। दोनों ने बैठ के एक सर्वदलीय मीटिंग करवाया और सर्वदलीय मीटिंग इसीलिए हुई कि हम आपके साथ हैं, पाकिस्तान के साथ युद्ध में हम आपके साथ हैं। देश में जो है ब्लैकआउट किया गया, इसीलिए किया गया, ये एक तस्वीर दी गई कि अब जो है देश युद्ध की तरफ जा रहा है। पूरे देश को ये ब्लैकआउट से अपनी स्थिति को स्पष्ट कर दिया गया था कि अगर ऐसा कुछ होता है पाकिस्तान के साथ तो बिजली आप नहीं जलाएं, लाइट्स रहते हुए भी आपके पास लाइट्स नहीं होंगे। इसके लिए पूरा देश भी प्रिपेयर हो गया था, तैयार हो गया था। लेकिन एकाएक 2 दिन के बाद ये जो सीज फायर का मामला आया, उससे कहीं ना कहीं पूरे देश में एक बेचैनी है, खलबली है सरकार के खिलाफ। अगर आपने सर्वदलीय बैठक की तो आपको सीज फायर के बारे में भी बताना चाहिए था, क्योंकि देश के सेना में शौर्य है, जज्बा है, हमको उनके ऊपर गर्व है। लेकिन उसके बाद क्या होता है, आपने आसिफा कुरैशी को देखा, उनके ऊपर क्या बयान आ गया, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है आपके मध्य प्रदेश के, नहीं वो क्या चीज कहते हैं, वो मिनिस्टर है वहां के, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है, विजय शाह साहब। अच्छा सॉरी, मिनिस्टर हैं, मंत्री हैं, वो मिनिस्टर हैं। उन्होंने क्या किया, सोफिया कुरैशी के बारे में, कर्नल सोफिया कुरैशी सर। उसके बाद फिर एक दिन के बाद ऐसा आ गया कि भारत की सेना और भी लोग, सारे लोग नतमस्तक है किसके, प्रधानमंत्री के। तो ये सब बयान जो है ना देश को जोड़ता है, जोड़ता नहीं है सर। वो तो और आप बताइए कि ये व्यापार को लेकर सीज फायर क्यों हुआ? आज तक यही होता था देश में, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बारे में जब भी बातें होती थी तो होता था कि ये हमारा आंतरिक मामला है, इसमें कोई वजह नहीं डाले। लेकिन यहाँ एक एक घंटे के अंतराल में ब्रीफिंग होती है आदरणीय प्रधानमंत्री जी की और ट्रंप जी की, और ट्रंप जी उनसे 1 घंटे पहले बोल चुके होते हैं कि मैंने मध्यस्थता की और मैंने कहा कि ये आरजू खान साहब, यही विपक्ष का यही प्रॉब्लम है कि ट्रंप क्यों बोले, और ट्रंप का जो दादागिरी है, कांग्रेस और पूरे जो अलायंस है, इंडिया अलायंस का, यही करना कि ट्रंप के दादागिरी के सामने मोदी साहब क्यों झुके। बिकॉज दादागिरी चल रहा था, जब हमारे जो ट्रैवलर्स को चेन में बांधकर एरोप्लेन में डाल के लेके आया था, वहां से लेके आज तक कंटिन्यूस ट्रेड तक, कंटिन्यूस एक के बाद दादागिरी। एप्पल वाला किस्सा भी था। बोलिए मामला यही नहीं है। हाँ, मामला यही नहीं है। मैं आपको 2 कदम और आगे मैं बताता हूं, उसको मैं ब्रीफ करता हूं। विपक्ष के ऊपर से और आदरणीय लीडर ऑफ अपोजिशन तेजस्वी प्रसाद यादव की तरफ से ये बार बार बयान आ रही है कि सर्वदलीय जो है बैठक भी अगर करवा ले तो ठीक है फिर से, या फिर जो है संसद में जो है इसके लिए 2 दिन के लिए सत्र बुलाया जाए, क्योंकि देश के एक एक नागरिक को जानने का अधिकार है। सब जानता है कि पाकिस्तान ने नापाक हरकत किया, आतंकवादी गतिविधियों की वजह से उनके ऊपर अटैक हुआ। लेकिन फिर हमने क्यों उस अटैक को सीज फायर में चेंज कर दिया? एक एक आदमी देश का नागरिक जानना चाहता है, इसलिए हम चाहते हैं कि संसद सत्र बुलाया जाए और इस पर बहस की जाए। और अगर जिस तरीके से आपने बात कर रहे थे, आप लोग आपने शुरुआती दौर में बात किया कि बहुत सारे लोग जो है फॉरेन ट्रिप पे जा रहे हैं और पूरे देश में जाके ये बताएंगे कि क्यों हुआ, सीज फायर क्यों हुआ। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये ब्रीफिंग पहले संसद में होना चाहिए। संसद में आप ब्रीफिंग करिएगा तब तो आप बताइएगा ना। अदर कंट्री में जब आप जाइएगा तो उसी पैटर्न पे आप बात करिएगा। आरजू खान साहब, संसद में अगर ना भी करें
तो जितने पार्टीज के नेता हैं उनको बुला लें, उनको ब्रीफिंग करते हाँ, हैं हम और उनको बोल हम इस दें, चीज को एक्सेप्ट करते हैं, हम डिनाई नहीं करते हैं, और उनको बोल हम एग्री दें हैं। और उनको बता दिया जाए कि क्या बाहर बोलना और क्या नहीं बोलना। हाँ, सीधी बात। यही चीज हम चाहते सीधी हैं, बात। यही चीज चाहते हैं। I agree लेकिन with ये अपने आप में एक सवालिया निशान है। पत्रकार महोदय, मैं फिर से बता रहा हूं, जी बिल्कुल। इससे पहले भी सर्वदलीय बैठक हुई है। देश की जो सत्ता है वो क्यों सर्वदलीय बैठक नहीं चाहती है, पहला सवाल ये। दूसरा सवाल ये, जब देश की सेना के पास शौर्य है, साहस है, इतनी ताकतवर है, और हमने हमेशा पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है, उसके बाद आप 2 दिनों में युद्ध विराम क्यों करना चाहते हैं? ये सबसे बड़ा सवालिया निशान है। और ट्रंप आते हैं और ट्रंप मध्यस्थता करते हैं और कहते हैं कि व्यापार, कहते हैं कि मैंने मध्यस्थता करी, यानी कि अडानी और अंबानी के चलते ये सब हो रहा है। क्या सरकार उनके कदमों में गिर चुकी है, अडानी और अंबानी के, और वो जाके बिजनेस मीट करते हैं? सवालिया निशान ये है। सर, over here, very frankly speaking, strictly between you and me, maybe we are missing the wood for the trees, perhaps. We are missing the elephant in the room. अभी तक कोई बात नहीं कर रहा, सिर्फ हम ही इसके बारे में बात कर रहे थे। आप क्योंकि हमारे साथ नहीं थे तो इसलिए आपने सुना नहीं होगा। 22 तारीख को जब पहलगाम में अटैक हुआ, ये चैनल जो है ना जिस पर आप अभी बैठे हैं सर, नेशन नाउ, और मैं आरकेबी और प्रदीप नाम्बियार साहब साथ में, हम अकेले थे जिन्होंने कहा था कि पाकिस्तान में इतना जिगरा नहीं है कि वो पहलगाम कर ले, इसके पीछे चाइना है, हमको चाइना से लड़ना पड़ेगा whether we like it or not. So perhaps आपकी that is a बातों में एक major सवाल thing. और जहन में आ गया। जी बोलिए। आपके बात में एक सवाल और जहन में घर बोलिए सर, कर बोलिए, गया बोलिए, we listening. कि आप ये बताइए, आपने 141 कंट्री घूमे, जी पता नहीं कितने करोड़ अरब रुपए आपने देश के निछावर कर दिए, बर्बाद कर दिए। उसके बाद सबसे बड़ा सवाल है कि एक भी कंट्री आपके साथ क्यों नहीं खड़ी हो रही है? जी, एक भी कंट्री apart from आपके पक्ष में क्यों नहीं है? इजराइल को छोड़ के। इजराइल को छोड़ के। जी, ये इजराइल कितना और बड़ा पोलैंड आपका को छोड़ फेल्यूर है। करेक्ट। देश की सत्ता का, देश के विदेश मंत्रालय का कितना बड़ा फेल्यूर है, आप इस चीज को बताइए। जी, सो विच इज व्हाई वी हैड टू सेंड दिस डेलीगेशन अब्रॉड। अब जाकर के जो शैलेश पांडे जी, जो आरजू खान साहब ने कहा, वो सर मैं आपको सीधी सादी बात बता रहा हूं, उसमें बुरा मानने वाली बात कोई नहीं है। शैलेश पांडे जी इसको पर्सनली, व्यक्तिगत तौर पे बिल्कुल ना। मैं तो एक छोटा सा और कमेंट कंक्लूड करके मैं इसको खत्म करता हूं, एक छोटा सा कंक्लूड करके खत्म करता हूं। मैं उसको भी मैं बुरा नहीं मानता हूं जो कि गोदी मीडिया में दिखाया गया कि पाकिस्तान के ऊपर हम कब्जा कर चुके हैं, पाकिस्तान की राजधानी लाहौर में हम झंडा गाड़ चुके हैं, मुनीर शाह जो है बंकर में जाके छुप गया है, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। मैं ये सबको मैं अच्छा मानता हूं, मैं सबको अच्छा मानता हूं, लेकिन सीज फायर क्यों, जब सब कुछ अच्छा हो रहा है। So let me go to शैलेश पांडे साहब। शैलेश पांडे साहब, there is a very respected security analyst जो आज भी अजीत डोवल साहब के बड़े अच्छे दोस्त थे। मैं आपको खुद व्यक्तिगत तौर पे बता रहा हूं, क्योंकि मैं दोनों को जानता हूं। अजीत डोवल साहब को भी जानता हूं और ब्रह्मा चेलानी साहब को भी जानता हूं। ब्रह्मा चेलानी साहब मेरे साथ में ही थे, वो एसोसिएटेड प्रेस के उस वक्त स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट थे, सीनियर स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट। सुनने वाली बात है सर, 1984 में 6 जून को हम लोग साथ में थे अमृतसर में जब ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ। मैं, ब्रह्मा चेलानी, मार्क टली, अजय बोस, शेखर गुप्ता और हमारे चरणजीत सिंह सग्गू जो मारे गए बेचारे, और एक और भी शख्स थे जो अमृतसर के ही रहने वाले हैं, उनके भी गर्दन में गोली लगी थी। यही लोग थे वहां पे। तो ब्रह्मा चेलानी साहब इज वन ऑफ द मोस्ट रेस्पेक्टेड स्ट्रेटेजिक एनालिस्ट। उन्होंने सर ये बोला है, जिनकी बात हर एक कोई सुनता है, उन्होंने ये बोला है कि भैया बार बार हिंदुस्तान के साथ ऐसा क्यों होता है? अगर हम लोग जिस तरीके, और अगर मगर की तो उसमें बात ही नहीं है, जो सैटेलाइट इमेजेस सारी आ गई हैं। अब तो और छोड़िए, जो इस्लामाबाद टाइम्स है, जो असली नाम है न्यूयॉर्क टाइम्स का, न्यूयॉर्क टाइम्स का तो नाम जिहादी टाइम्स है ना, एक्चुअली एंटी इंडिया टाइम्स है। आज न्यूयॉर्क टाइम्स भी एक्नॉलेज करता है, वो भी एडमिट करते हैं कि भारतीय सेना ने यहां पर पाकिस्तान के हवाई अड्डे तोड़े हैं। क्लियर कट है सर। न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट, बीबीसी, सीएनएन, ये सब एंटी इंडिया हैं। ये सब लोग भी आज एक्नॉलेज कर रहे हैं। तो सर ये सवाल बहुत लाजमी है शैलेश पांडे जी, मैं मानता हूं इसके ऊपर पूरा सच कभी बाहर नहीं आएगा, मैं मानता हूं। 1971 में हम लोगों ने बांग्लादेश क्रिएट किया, 1972-73 में हम लोगों ने 93,000 पाकिस्तान
के POWs छोड़ दिए और सामने से कुछ नहीं लिया। तो बार बार भारत के ऊपर इतना दबाव कैसे आ जाता है? यही चीज 1965 में भी हुई थी, बाय द वे। भरत सोनी साहब और आजू खान साहब जरा ध्यान से सुन लें, बिकॉज वन ऑफ माई अंकल्स डाइड देयर इन द कॉन्क्वेस्ट ऑफ हाजी पीर पास। हाजी पीर पास की लड़ाई में हमारे चाचा जान की मौत हुई थी वहीं पर, एंड ही वाज गिवन अ वीर चक्र, बट एंड वी रिटर्न्ड इट इन द ताशकंद अकॉर्ड, वी रिटर्न्ड इट सर, और सामने से हमें कुछ नहीं मिला। तो शैलेश पांडे साहब, ये क्या है? ये लोग जानना चाहते हैं, क्यों जब जीत रहे थे 2-3 दिन और कंटिन्यू कर लेते सर? बोलिए पांडे जी। देखिए राजीव जी सर, आपने भी देखा है, हमने भी देखा है कि जब ये आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई शुरू हुई तो देश के यशस्वी फौलादी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने लगातार भारतीय सेना के सेना नायकों के साथ बैठकें की, अपोजिशन के सभी पार्टियों के साथ मीटिंग की, ऑल पार्टी मीटिंग की, और बाद में सेना नायकों से और जितनी भी सुरक्षा एजेंसियां हैं उनसे बैठक करने के बाद प्रधानमंत्री जी ने सेना को खुली छूट दी कि सेना अब यहां से जो भी निर्णय लेना है वो सेना ने लेना है, और सेना को खुली छूट दी। उसके बाद सेना ने लड़ाई शुरू की, जो 9 जगह पर सबसे पहले आतंकवादी अड्डे पर हमने सर्जिकल स्ट्राइक की। एक साथ ये इतिहास रचा हमारी भारतीय सेना ने कि 9 जगह पे, जहां पे लश्कर ए तोयबा, जैश ए मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन के मुख्यालय को हमने ब्लास्ट किया, जमीन दोस्त किया, मिट्टी में मिला दिया, और साथ ही 100 से ज्यादा आतंकवादी को हमने मार गिराए। आज जिससे पाकिस्तान बौखला गया और फिर उसने हम पे अटैक करने की चाइनीज ड्रोन और तुर्की ड्रोन और खिलौनों से कोशिश की, लेकिन हमारी सुदर्शन चक्र S-400 ने सारे उनके जो खिलौने हम पर फेंक रहे थे उनको ध्वस्त कर दिया और उनको धूल चटा दी। और वहां भारतीय सेना का शौर्य, रणनीति का शौर्य, इक्विपमेंट का शौर्य वो सारी दुनिया ने देखा, और आज इसकी तारीफ न्यूयॉर्क टाइम्स और तमाम विदेशी मीडिया और भारतीय मीडिया कर रही है। और फिर जब उसका जवाब दिया पाकिस्तान ने, तो भारतीय सेना ने फिर से 1 नहीं 2 नहीं, पाकिस्तान के 11 एयरवेज, जिसमें नूर खान रावलपिंडी का, रफीकी, मुरीद, बड़े बड़े जो एयरबेस थे उसको ध्वस्त करने का काम किया। जो पाकिस्तान के सैनिक अड्डे थे उसको ध्वस्त करने का काम किया, जमीन में मिट्टी में मिला दिया, जिससे कि पाकिस्तान तड़फड़ा गया, पाकिस्तान की हालत खराब हो गई। पाकिस्तान तब जाके दुनिया के देशों के पास गिड़गिड़ाने लगा, भीख मांगने लगा, रोने लग गया। और जिसके बाद आपने देखा होगा कि कई देशों ने इंटरफेयर किया, लेकिन पाकिस्तान के गिड़गिड़ाने पर, और मैंने आपको यह भी बताया है कि पाकिस्तान क्यों घुटने पर आया। सबसे पहले कि हमने जो उसके एयरबेस को 11 एयरबेस को ध्वस्त किया हमने, इसलिए वो घुटने पर आया। और वो पिछले 75 सालों में 24वीं बार IMF से भीख मांगने गया कटोरा लेकर। आज उसकी पांडे जी परिस्थिति का सुनिए ना, एक पॉइंट और। दूसरी बात, अमेरिका के पास क्यों गया? क्योंकि अमेरिका ने उस F-16 विमान दिए थे, उसमें टर्म्स एंड कंडीशन थी। तो पाकिस्तान कटोरा लेके दुनिया के पास गया, पाकिस्तान गिड़गिड़ा है दुनिया से। और उसके बाद हमने जो भारतीय सेना को छूट दी थी, तो भारतीय सेना के जो हमारे चीफ जवान हैं उनके पास पाकिस्तान के जो मिलिट्री चीफ DGMO हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन पाकिस्तान के, उसने भारतीय सेना के DGMO को फोन करके सीज फायर किया। न हम किसी के दबाव में आए, न हमने किसी की बात सुनी। पाकिस्तान खुद आकर घुटने पर गिरा है, नाक रगड़ा है। और सुनिए उसके बाद दूसरी बात, आप जो बात प्रश्न खड़ा करते हैं, इस युद्ध के दौरान
मैं इसे सही नहीं मानता हूं। किसी भी प्रकार का प्रश्न हमारे शौर्य पर, पराक्रम पर, देश पर, सरकार पर बिल्कुल नहीं खड़ा किया जाना चाहिए, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारतीय सेना को पूरी छूट दी। भारतीय सेना अपने आप सारी कार्रवाई की और भारतीय सेना के सलाह से ही ये सीज फायर हुआ। पाकिस्तान जब घुटने पे आया, नाक रगड़ने लग गया इसलिए। और दूसरी बात, हमें यह भी समझना चाहिए कि आज हम विकसित राष्ट्र है और हमको विकास की ओर जाना है। आज 140 करोड़ का ये हमारा देश है। हम पांडे जी। एक महाशक्ति है हिंदुस्तान की। आज जो हम पहले 11वें 12वें पर अर्थ महाव्यवस्था थे, आज हम चौथे पांडे जी, कांग्रेस हमको हमारे देश को हमको समृद्धशाली और समृद्धशाली विकसित भारत बनाना है। विकसित भारत। इसके लिए हमें युद्ध की पांडे आवश्यकता जी, नहीं थी। कांग्रेस का एक ही स्लोगन है, देश की जनता Continuous। आज खुश है। देश की जनता आज मोदी जी पांडे जी जरा सुन तो लीजिए। पांडे जी, कांग्रेस कंटिन्यूस कैंपेन चल रहा है। कांग्रेस के टॉप लीडरशिप में यही है कि ट्रंप के दादागिरी के सामने मोदी साहब क्यों झुक गए और सिलसिला दे रहे हैं। राइट, इलीगल इमिग्रेंट्स को जंजीरों में झाड़कर एक ही एयरक्राफ्ट में डालकर यहां पर भेजे। उसके बाद टैरिफ के ऊपर मोदी साहब और उनका झगड़ा हो गया। फिर उसके बाद जो कश्मीर में थर्ड पार्टी शिमला एग्रीमेंट के हिसाब से नहीं होना चाहिए। ट्रंप बोल रहा है कि हम कश्मीर में आपको सॉल्यूशन दिला देंगे। एप्पल का सीईओ को ट्रंप कहता है कि इंडिया में इन्वेस्ट मत करो। फिर ट्रंप कह रहा है कि ट्रेड एक ही चीज था जो हमने कहा और सीज फायर हो गया। तो किस प्रकार से यह दादागिरी के सामने कांग्रेस का कहना झुकना जरूरी है क्या? पांडे जी देखिए, मैं सबसे पहले तो कांग्रेस पार्टी के इस आरोप को बेबुनियाद कहता हूं और मैं विनती करता हूं कि इस वक्त पे ऐसे हालात नहीं है कि आपने किसी भी प्रकार का प्रश्न ये करना चाहिए। दूसरी बात, भारत की सरकार और भारत आज फौलादी मोदी युग में जी रहा है और ये मोदी युग का भारत है और मोदी जी किसी के आगे झुकने वाले नहीं। मैं आपको लिख के देता हूं। आज ट्रंप ने तो यह भी कहा कि मैंने सीज फायर करा है, फिर 2 दिन के बाद क्या कहा? 2 दिन के बाद वही ट्रंप पलट हो गए कि नहीं, मैंने सीज फायर नहीं किया, मैंने तो शांति की कोशिश की। ये तो पूरी दुनिया ने देखा है ना ट्रंप ने क्या कहा। और दूसरी बात, उन्होंने जो ट्रंप की आप बात कर रहे हैं कि उन्होंने एप्पल फोन को बोला कि भारत में फैक्ट्री मत लगाओ, लेकिन आप ये भी तो देखिए कि एप्पल कंपनी के जो मालिक हैं, क्या उन्होंने ट्रंप की बात मानी? नहीं मानी। आज वो भारत में फैक्ट्री लगा रहे हैं, भारत में एप्पल की फैक्ट्रियां चल रही है, ट्रंप की कोई बात मानी नहीं गई है। इसको आप मोदी जी की ताकत, मोदी सरकार की ताकत और हिंदुस्तान की ताकत को आपको बधाई देना चाहिए, साधुवाद देना चाहिए कि आज ये मोदी सरकार, मोदी जी और हिंदुस्तान भारत की ताकत है कि ट्रंप की बात को भी अमेरिका के बिजनेसमैन नहीं मानते हैं और ट्रंप को भी अपनी बात को पलटना पड़ा, झुकना पड़ा, सच्चाई को सामने लाना पड़ा। सीज फायर में उनका कोई हाथ नहीं था और ये दूध पानी का पानी और दूध का दूध हो गया है। इसके बाद कोई प्रश्न नहीं खड़ा होना चाहिए। जी, okay. So let me go across to Arju Khan Sahab. Arju Khan Sahab, because he's from Patna right now. Arju Khan Sahab, we might lose the connection, so that's why I'm going to him. But Soni Sahab, I'll come to you just after that. जी आरजू खान साहब, आप कुछ बोलना चाह रहे थे, बोलिए सर। जी, मैं ये बोलना चाहता था कि यहाँ सेना के ऊपर सवाल नहीं है। ये जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है, ये इस बात को ये बहुत क्लियरिटी के साथ समझ जाए। यहाँ जो तीनों सेनाएं हैं, जो बीएसएफ है, जो एयरफोर्स है, जो नेवी है, इन लोगों के ऊपर हमारा सवाल नहीं है। गर्व है हमें उनके ऊपर, ये बड़ी मैं क्रिस्टलिटी के साथ मैं कह रहा हूं। लेकिन परेशानी तब है कि ये जो भारतीय जनता पार्टी के लोग और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जो मोदी नामा जो पढ़ते थे ट्रंप के सामने, मोदी और ट्रंप के लिए जो हवन और पूजन करते थे, हाउडी मोदी जो करते थे, ये करते करते किस स्तर पे आ गए हैं। परेशानी इस बातों से है, परेशानी इस बातों से है कि जब देश में हम वहां पे जो है लगातार जो है उनको क्राइसिस कर रहे थे, उनको तबाह कर रहे थे, उनको कोलैप्स कर रहे थे, तो एकाएक सेना को पीछे क्यों रोकना पड़ा? देश की वजह से, देश के जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री हैं उनकी वजह से। जब हम इतने मजबूत ही थे, सब कुछ था, सब कुछ ठीक था, तो सीज फायर करने का क्या नौबत था? और जब कंगना रनावत ने जो एक डिलीट किया, अपने जो मैसेज जो डिलीट किया ट्विटर एक्स पे, वो किसके वजह से हुआ? जेपी नड्डा जी के वजह से हुआ। ये क्यों भूल रहे हैं? इनकी जो मोदी जो ये ट्रंप चालीसा जो पढ़ते थे ना,
इनकी औकात नहीं है कि ट्रंप के सामने ये कुछ भी कहते। टेलीविजन पे बैठते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ये इनको शोभा देता है। लेकिन देश की जनता जानती है कि भारतीय जनता पार्टी बड़ी कॉन्फिडेंट के साथ झूठ बोलती है, और यही झूठ, यही परसेप्शन देश के लोगों को खटक रहा है। बार बार मैं कह रहा हूं, शुरुआत से लेकर अभी तक देश की सेना पे कोई सवाल नहीं है। देश की सेना पे कोई सवालिया निशान हो ही नहीं सकता है। आपके पॉलिसी के ऊपर सवाल है। आप जो मोदी इतना जो ट्रंप के लिए करते थे, जाके उनके लिए चुनाव प्रचार करते थे आप अमेरिका में, उनके लिए हवन पूजन करते थे। आज वो ट्रंप क्या दलील क्या देते हैं, कहते हैं कि बिजनेस करने की वजह से, उसमें पाकिस्तान को भी उन्होंने इंक्लूड किया कि व्यापार नहीं होगा। और अभी कंगना रनावत ने जो ट्विटर पे जो उनके खिलाफ जो आपत्तिजनक जो पोस्ट किया था, सही किया था, लेकिन जब जेपी नड्डा जी की क्या ऐसी मजबूरी थी कि उसको डिलीट करवा दिया? आप डरते हैं, हकीकत यही है, आप डरते हैं। सर, और देश की जनता यही जानना चाहती है, इसीलिए संसद सत्र बुलाना चाहती है कि आपके झूठ के नकाब को उठा के फेंक दे। Sir, we don't know if he is lying or not. Let's be very clear. Foreign policy is not decided on emotional terms. Sir, मैं आ रहा हूं आपके पास। शैलेश पांडे जी, मुझे मालूम है, आप टेंशन ना लें। भरत सोनी साहब has not spoken. Let me go. I just want to ask अर्जुन खान साहब, अमित शाह जी ने क्लियर कट कहा कि ऑपरेशन सिंदूर का हमको टोटल मोदी जी के, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के पॉलिटिकल विल और एक्यूमन नंबर 1 उस पर देना चाहिए। पॉलिटिकल जबरदस्त पॉलिटिकल विल दिखा दिया। सेकंड, जो इंटेलिजेंस सर्विसेज ने जो टारगेट्स दिखाए, वो इंटेलिजेंस सर्विस उनको भी हम लोग चाहते हैं जिस प्रकार से किया। और तीसरा, तीनों आर्म फोर्सेस प्रिसिजन अटैक्स। बट सबसे पहले उन्होंने कहा कि मोदी जी के पॉलिटिकल विल को हम सलाम करते हैं। हाउ डू यू सी दैट? मजबूरी है, उनकी मजबूरी है ये कहना। अभी भी देश हिंदुस्तानियों को उन आतंकवादियों के सर चाहिए। देश के सत्ता पक्ष को, विपक्ष को और 140 करोड़ जनता को पाकिस्तानी जो आतंकवादी थे उनके सर चाहिए। हम आज भी उस पर यकीन रखते हैं। वो सर क्यों नहीं मिले? उस सर के अलावा और भी जो सर है, जो हिंदुस्तान की तरफ नापाक नजरिए से देखते हैं, उनके भी सर चाहिए। ये बात है ना। आप सिर्फ मोदी 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 जी कहते हैं, सीज फायर करवा के बैठ जाते हैं और कहते हैं कि अभी भी हमने बहुत कुछ किया। आप कहते रहिए, और आप ही के लोग, आप ही के कैबिनेट का कोई कोई भी नेता आता है और मध्य प्रदेश का क्या क्या कह देता है सेना पे। हकीकत यही है कि आपको सेना पे, आपको तिरंगे पे कोई विश्वास नहीं रहा। अरे तिरंगा का तो बहुत बड़ा इतिहास है भारतीय जनता पार्टी का। जिनको अपना विचारधारा जिनको मानती है, जनसंघ के बाद आरएसएस, इनका कहां था? इनकी कहां थी दिलचस्पी तिरंगे में? इनकी आत्मीयता कहां थी? कहां चली गई थी? अरे सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद इन्होंने अपने मुख्यालय पे तिरंगा फहराया। और आज देखिए, तिरंगे के साथ खड़ा होना और तिरंगे के पीछे खड़ा होकर अपना चेहरा छुपाना दोनों अलग अलग चीजें हैं। तिरंगे के साथ आप मजबूती से खड़ा नहीं है, बल्कि आप तिरंगे के पीछे छिप के राजनीति करना चाहते हैं। आपका तिरंगे का प्रेम कहां गया? वो वक्त कहां गया जब कहा गया था कि तिरंगे का रंग ही मनहूस है? वो कौन लोग थे? और आतंकवादी जिसने सोफिया कुरैशी को जिसने आतंकवादी किया, उनका अगर कलेजा इतना बड़ा है तो मैं ऑन चैनल आपके डिबेट में कह रहा हूं कि इस देश का पहला आतंकवादी नाथूराम गोडसे था। उसको कहिए। आतंकवादी की बहन बोला सर? नहीं, आतंकवादी की बहन पे भी मैं आता हूं। आप कहिए कि प्रज्ञा साध्वी ठाकुर आतंकवादियों की बहन है। आपसे ये अल्फाज क्यों नहीं निकलते हैं मुंह से? जी, एनएसए ने तो बोला है, भाई है आतंकवादियों का। एनआईए प्रज्ञा साध्वी आतंकवादियों की बहन है। आपको कहना चाहिए ना बड़े दिल से। सर, एनआईए ने तो यही बोला है कि उनके खिलाफ जो आतंकवादी मामला दर्ज है वो चलाना चाहिए, ऐसा उन्होंने बोला है। यानी हमारी जो एनआईए है उसने। बट आई विल कम बैक टू दैट। लेट मी गो अक्रॉस टू भरत सोनी साहब। भरत सोनी साहब, अभी जो खबर आ रही है उसके मुताबिक जो इंडस वाटर ट्रीटी है उसको लेकर के वी आर नॉट गोइंग टू बी टॉकिंग टू पाकिस्तान। नई कैनाल्स हम लोग बना रहे हैं, पुरानी कैनाल्स को रिस्टोर कर रहे हैं और फ्लशिंग आउट प्रोसेस इज ऑलरेडी स्टार्टेड। और ये भी कहा जा रहा है, भले वो ब्यास का पानी हो, रावी का पानी हो, सतलुज का पानी हो, चनाब का पानी हो, झेलम का पानी हो, एक बूंद भी उस तरफ नहीं जाएगा, ये कहा जा रहा है। खैर वो तो हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते क्योंकि पानी तो जाएगा, बिकॉज वी डोंट हैव द स्टोरेज कैपेसिटी राइट नाउ। लेकिन इंटेंशन इज वेरी क्लियर, इरादा बिल्कुल ठीक है। इरादा ये है कि देश का पानी यहीं पर आना चाहिए। और जैसे उमर अब्दुल्ला साहब ने कहा, असेंबली में कहा कि जो इंडस वाटर ट्रीटी है वो तो जम्मू एंड कश्मीर के लोगों के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी हुई है, वो प्लीज हमें मिलनी चाहिए।
आज जम्मू के लोग जो हैं वो पानी को तरसते हैं सर, बिकॉज वो पूरा का पूरा पानी जो है झेलम और चनाब का उस तरफ जा रहा है. आई होप वी आर एबल टू कंस्ट्रक्ट इनफ, आई होप वी आर एबल टू कंस्ट्रक्ट इनफ डाइक्स, enough reservoirs, enough artificial lakes and so on and so forth so that we can use the water ourselves. और जो सतलुज बेसिन है पंजाब में, जो पानी सीधा वेस्ट होता हुआ जा रहा है पाकिस्तान में और पाकिस्तानी भी उसको इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, वो अगर हम लोग नीचे लेकर के आए सर, पूरी पंजाब की प्रॉब्लम सॉल्व होती है, हरियाणा की प्रॉब्लम सॉल्व होती है. मैं कहता हूं राजस्थान से रेगिस्तान निकल जाएगा सर, अगर असल में ऐसा हो जाता है. आप क्या कहेंगे इसके बारे में सर, बताएं भरत सोनी साहब. सर बिल्कुल सर हमने एक पहले वाले डिबेट में भी ये कहा था, अगर ये अमल में आता है और इसका इम्प्लीमेंटेशन होता है और राजस्थान के सूखे इलाके तक अगर पानी लाते हैं तो पूरा देश, सर हम लोग पहले ही बोल चुके, सर पूरा देश मोदी जी के साथ खड़ा है, पूरा विपक्ष मोदी जी के साथ खड़ा है. लेकिन अगर मोदी जी इस प्रकार की राजनीति करेंगे, जिस प्रकार से सीज फायर हम पे थोपा गया, सर ये कतई हमें मंजूर नहीं है. सर देखिए ट्रम्प की दादागिरी किस प्रकार से हुई, सिर्फ पूरा देश का आत्मसम्मान उन्होंने छलनी कर दिया सर. कि देखिए सामने बिठाकर हमको टैरिफ किंग कहा और उन्होंने ये कहा कि हम टैरिफ पढ़वा देंगे आपको. सर मोदी जी को अगर कोई कहता है हम आपको टैरिफ पढ़वा देंगे तो ये कितना मेरे आत्मसम्मान को मेरे ठेस को. मोदी जी किसी भी पार्टी करेंगे, आज वो हमारे देश के प्रधानमंत्री है और हमें गर्व है कि वो देश का नेतृत्व कर रहे हैं. अगर उनको कोई बोलेगा कि मैं टैरिफ पढ़वा दूंगा तो सर मेरे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती है. दूसरा सर उन्होंने देखे तभी मोदी जी मुस्कुराते रहे, वो जब टैरिफ की बात हुई तब वो मुस्कुराते रहे. सर कश्मीर में बिना बताए सर ये अभी कुछ भी बोले. सर सीज फायर डिक्लेयर किसने किया जी सर, क्या चीज फायर वहां डिक्लेयर. एक सवाल पूछूं सर, क्या आपकी इजाजत हो, हाथ जोड़ के, बुरा ना माने तो सर आपसे पूछूं. बोलिए सर 1971 में और उसके बाद 1972 में जब शिमला एग्रीमेंट हुई, जुल्फिकार अली भुट्टो साहब और उनकी बेटी भी साथ में आई थी, बेनजीर भुट्टो. वी स्टिल रिमेंबर, आई वाज इन द 4th standard I think at that time. We were reading newspapers, I still remember. Benazir Bhutto looked very beautiful and I still remember she had gone all over Simla and she had bought the records of the newly released movie Hare Rama Hare Krishna के उसने रिकॉर्ड खरीदे थे, मुझे अभी तक याद है. तो सर जब इंदिरा जी ने सारी वेस्टर्न फ्रंट पे जो पाकिस्तानी टेरिटरी थी जो वापस दे दी, सुनने वाली बात है सर, और 93,000 पाकिस्तानी प्रिजनर्स ऑफ वॉर को भी वापस दे दिया और सामने से कुछ नहीं लिया, सर उस वक्त के जितने भी ऑपोजिशन के नेता थे उन्होंने इस किस्म की बात नहीं करी थी सर. उन्होंने सिर्फ ये कहा था इंदिरा जी पर कोई जरूर प्रेशर होगा. हम मानते हैं अटल बिहारी वाजपेयी की बात जरा याद करिए, मैं दुर्गा वाली बात नहीं कर रहा हूं, मैं अभी की बात कर रहा हूं. उन्होंने कहा उनके ऊपर कोई जरूर प्रेशर होगा, वी स्टैंड बाय आवर प्राइम मिनिस्टर, और 93,000 जो प्रिजनर ऑफ वॉर जो हैं वो वापस दे दिए. इंदिरा जी ने देश के हित में ही निर्णय लिया होगा, ये ऐसा सर भारतीय जनसंघ ने उस वक्त कहा था. सर आपको लगता नहीं है कि आपको भी ऐसा कुछ बोलना चाहिए? भरत सोनी साहब, मैं आ रहा हूं, पांडे जी आपके पास आ रहा हूं. भरत सोनी साहब प्लीज. इसलिए नहीं लगता मुझे सर, क्योंकि देखिए ये ट्रम्प के, ये आरजू खान साहब ने अभी बताया सर, ये ट्रम्प के प्रचार में जाते रहे, ट्रम्प को इनका अच्छा दोस्त मानते रहे. करेक्ट. और सर ट्रम्प लगातार हमारे ऊपर, सर अभी आप एक फ्रेश बात बताता हूं सर, आप छोड़िए एप्पल को दिया कि नहीं, इलीगल इमिग्रेंट्स को बेड़ियां बांधकर भेजा और उनके प्लेन से उतारा गया, बाकी दूसरे देशों के इलीगल इमिग्रेंट्स को, सर वो इलीगल इमिग्रेंट्स कुछ भी हो वो हमारे भारतीय है, अगर इलीगल वहां है लेकिन मेरे देश के नागरिक है, अगर वो वहां गए हैं, हमारे देश के भारतीय गए हैं, उनको मान सहित लाना चाहिए. वो वहां इमिग्रेंट है, वो वहां के इलीगल रेसिडेंट्स है, लेकिन तो वो नहीं होते हुए सर इन लोगों ने उनका भी अपमान हुआ. हमारे देश की कितना, सर ये दूसरी बात सर मैं कहने को जा रहा था सर, 5% रेमिटेंस टैक्स लगने जा रहा है सर. दैट्स राइट सर, हमारे एनआरआईज के ऊपर 5% रेमिटेंस टैक्स लगने जा रहा है सर. पिछले साल 23-24 में $118.7 बिलियन
इनवर्ड रेमिटेंसेस आया सर, उसमें से केवल $32 बिलियन केम फ्रॉम यूएस से। अगर उन एनआरआई के ऊपर जो सब ये जाते थे ना हाउडी मोडी में, और जो अब की बार ट्रम्प सरकार, सर वो लोगों का क्या होगा? आज उनको तो बेचारे को वो शक्ल दिखाने का टाइम ये नहीं रहेगा उनको। So there is a very simple solution for that. There is a very simple. You are a banker. You should know there should be no double taxation. Don't tax them here. Let them be taxed over there. How does it make a difference? But Bharat As Soni simple साहब, as that. क्या है सर? Bharat Soni साहब, यह क्लियर कट मोदी साहब ने कहा कि टेरर एंड टॉक्स विल नॉट गो टुगेदर, एंड जयशंकर जी ने क्लियर कट कहा कि वी ओनली थिंग वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर एंड द अदर थिंग इज टेरर बाय पाकिस्तान, एंड लिस्ट फर्निश कर रहा है कि हैंड ओवर दीस टेररिस्ट टू अस, जिसमें हफीज सैयद है, जकीउर रहमान लखवी है, अजहर मसूद अजहर है, दाऊद है। ये पहली बार, डोंट यू थिंक इट्स समथिंग दैट इज वी शुड बी प्राउड ऑफ कि इंडिया इज टेकिंग अ पोस्चरिंग जो है, जबरदस्त पोस्चरिंग है। भरत सोनी साहब, प्रदीप जी, यू हैव रेज्ड द राइट पॉइंट। सी, पाकिस्तान को किसने जानकारी दी सर? इन्फॉर्मिंग पाकिस्तान एट द स्टार्ट ऑफ आवर अटैक, हु डिड इट सर? सर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एडमिटेड, सर जयशंकर जी यही बता रहे सर। तो इसको ऑथराइज किसने किया? और सर हमारे कितने एयरक्राफ्ट एयरफोर्स ने गमाए, इसका कौन बताएगा सर? सर आ चुकी है एविडेंस। और जयशंकर जी अगर जो ये वहां जाके ऐसे बता रहे हैं, सर तो स्टेटमेंट क्या हैज कम। ये सही है सर? Sir, the statement has come. We have not lost any aircraft. We have not lost Okay, any sir. aircraft or any pilot during Operation Sindoor. This is what the IF DGMO has said yesterday. कल statement आई है sir Indian Air Force की that we have not lost anybody. Because I'll tell you what, when I mentioned the New York Times, sir पूरी बात सुन लें sir, please. The New York Times, Washington Post, BBC और कौन से एयर फ्रांस और वो साले वो एक और चैनल है फ्रांस 24, जिसमें हमारी यहाँ की लीला जसिंटो, शी कीप्स राइटिंग हाउ इंडियन एयर फोर्स इज कंप्लीटली डिप्लीटेड। आधी से ज्यादा राफाल फ्लीट जो है वो खत्म हो गई। हमारे लोग हैं सर ये। और एक और जेंटलमैन है प्रवीण सोनी, सो कॉल्ड सिक्योरिटी एक्सपर्ट। अब मुझे तो ताज्जुब है, वो बंदा चंडीगढ़ में रहता है, ही इज अ सिक्योरिटी कंसल्टेंट, ही इज अ सिक्योरिटी कंसल्टेंट टू आवर डिफेंस फोर्सेस। वो कहता है करण थापर के साथ इंटरव्यू में, आई एम सो हैप्पी इंडिया लॉस्ट 4 एयरक्राफ्ट, आई एम सो हैप्पी इंडिया लॉस्ट एयरक्राफ्ट, 4 एयरक्राफ्ट। ये ऐसा बोलता है सर। मेरा तो ये कहना है इनको उठा करके अंदर डालो ना सर किसी अपोजिशन लीडर ने ये ऐसा नहीं बोला है, मैं मानता हूं। हमने इतने Sir, एयरक्राफ्ट we trust our defense forces. Our defense forces have said very clearly, exactly. we have not lost लेकिन any sir, aircraft. I trust them. लेकिन राजीव जी, क्या जी। पाकिस्तान को अटैक शुरू करने के समय ही इन्फॉर्म करना सही था? सर अटैक एक बार जब हो गया था उसके बाद तो इन्फॉर्म करना ही था ना। We had to inform क्यों them. करना है सर? सर उनका ले लो कब्जा, पीओके ले लो, Sir, और we फिर are बाद not में there. इन्फॉर्म करो, फिर Sir, सीजफायर sir, करो। POK we cannot सर take. इतने एडवांस। सर मैं आपको लिख के दे देता हूं, कोई भी अगर बोलता है कि हम पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर फौज से ले लेंगे, सर ही इज लिविंग इन अ फूल्स पैराडाइज। सर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर यानी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर, शैलेश पांडे जी आपके लिए भी है, और सर आपके लिए भी है आरजू खान साहब। आप तीनों ज्ञानी ध्यानी हैं, लेकिन आई हैव कवर्ड डिफेंस फॉर द लास्ट 15 years, right when I joined Patriot in 1982 in Delhi. For 15 years I was a defense correspondent, sir. You need a ratio of 10:1 to be able to take on Pakistan occupied Kashmir. और वहां पर भी क्या है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड के ऊपर सर काराकोरम पास के पास, दैट काराकोरम हाईवे दैट बिलोंग्स टू चाइना, सो यू विल हैव टू फाइट विद चाइना एज वेल। ऐसे नहीं आएगा पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर सर, बाय फोर्स नहीं आ सकता। अलग तरीकों से आ सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं आ सकता, बिल्कुल आ सकता है, लेकिन बाय फोर्स वी कैन नॉट गेट पीओके। अब आप बोलें शैलेश पांडे जी, बड़ी देर से आप कुछ बोलने की कोशिश कर रहे हैं, अब आप बोलें प्लीज। राजीव जी बोलिए सर। मैं बहुत ध्यान से अभी हमारे दोनों प्रवक्ताओं की बात को सुन रहा था। जी सर। लेकिन मुझे बड़ा दुख होता है, पीड़ा होता है, और मुझे बड़ी ही मैं क्या कहूँ, मेरे शब्द नहीं मुंह में आ रहे कि वो एक कहावत है कि सूप तो सूप चलनियों बोले जिसमें हजारों छेन। अरे ये सीज फायर, ट्रम्प ये जो विधवा विलाप कर रहे हैं, जो कांग्रेस पार्टी और एनडीए अलायंस के लोग, इनको कोई हक नहीं है बोलने का। जब मैं बार बार कह रहा हूं सीज फायर का बात
सरकार ने, मोदी सरकार ने सीधा सीधा ये कह दिया था कि सेना को पूरी छूट दी, सेना को निर्णय लेना था क्या करना है, सेना का सारा शौर्य, सारा पराक्रम, उसके बाद तो कोई प्रश्न खड़ा ही नहीं होना चाहिए। और जब ट्रंप ने खुद आकर कह दिया कि मैंने नहीं करा है, वो तो दो बात कर रहा है, तीन बात कर रहा है, फिर आप उसकी बात को क्या तूल दे रहे हो? नहीं देना चाहिए। और दूसरी बात, ये जो कह रहे हैं कि ऐसा करना चाहिए था, वैसा करना चाहिए था, पीओ के लिए लेना चाहिए था, मुझे बताया यही कांग्रेस, यही एनडीए अलायंस सरकार थी 65 साल, मुंबई में बम विस्फोट हुए थे। और दूसरी बात ये सुनिए, ये मोदी सरकार ने और भारतीय सेना ने जो पाकिस्तान पे अभी कार्रवाई की, ये कश्मीर में हुए आतंकवादी हमले के खिलाफ ये कार्रवाई हुई जी। लेकिन कांग्रेस के समय में आज 100 से ज्यादा आतंकवादी हमले हुए, एक भी आतंकवादी हमले का इन्होंने सर्जिकल अटैक किया क्या? पाकिस्तान पे अटैक किया क्या? नहीं किया। मुंबई में बम ब्लास्ट हुआ, 150 से ज्यादा लोग मर गए, क्या किया इन्होंने? इन्होंने तो बोल दिया, तरह तरह की कहानियां गढ़ने लग गए, इसमें इसका हाथ है, आरएसएस का हाथ है, इसका हाथ है, उसका हाथ है। ये पाकिस्तान नहीं गए, पाकिस्तान पर अटैक नहीं किया इन्होंने, पाकिस्तान के किसी आतंकवादी को पाकिस्तान में घुस के नहीं मारा। और उसके पहले जब ट्रेन के अंदर बम ब्लास्ट हुए थे और मुंबई के अंदर बहुत सारे जगहों पे बम ब्लास्ट हुए थे, तो उस वक्त मुख्यमंत्री शरद पवार ने क्या कहा था? एक जगह एक्स्ट्रा जोड़ दिया, क्योंकि 13 जगहों पर हिंदू आबादियों में वो बम ब्लास्ट हुए थे, तो शरद पवार ने एक जगह और जोड़ के एक मुस्लिम इलाके का भी नाम ले लिया, ताकि ये मुसलमानों में मैसेज जाए कि सिर्फ ये हिंदुओं पे हमला नहीं हुआ। मतलब ये तुष्टिकरण की राजनीति करने लग गए। लेकिन फिर भी इन्होंने पाकिस्तान पे अटैक नहीं किया, आतंकवादी हमले का बदला नहीं लिया। इन्होंने 100 से ज्यादा पाकिस्तान परस्त हुए हिंदुस्तान पर आतंकवादी हमले का कभी भी बदला नहीं लिया। लेकिन ये मोदी सरकार है, ये मोदी सरकार के अंदर जब भी पाकिस्तान परस्त आतंकवादी हमला हुआ, चाहे वो उरी था, तभी भी हमने सर्जिकल स्ट्राइक की, घुस के मारा हमने पाकिस्तान को। जब उसके बाद पठानकोट हुआ, पठानकोट का भी हमने बदला लिया, घुस के मारा हमने। अभी जो कश्मीर के अंदर हुआ, हमने घुस कर मारा, सर्जिकल स्ट्राइक की और हमने लड़ाई लड़ी। देखिए, इनको कोई अधिकार नहीं है बोलने का सर्जिकल स्ट्राइक के ऊपर, पांडे जी फायर के ऊपर। राहुल गांधी ने क्या बोला आज? राहुल गांधी जी ने कहा कि जयशंकर जी गलत किए कि अटैक से पहले उन्होंने इन्फॉर्म किया पाकिस्तान को हम अटैक करने वाले। बोले क्या जरूरत था पहले? जो भरत सोनी साहब बोल रहे हैं, राहुल गांधी जी ने आज बोला कि जयशंकर जी को नहीं बोलना चाहिए था कि हम अटैक करने वाले हैं, सीधा जाके अटैक, इसमें हमारा नुकसान हो सकता था। भले आज नुकसान नहीं हो, पूरे रिपोर्ट बोल रहा है, बट ये जो जयशंकर जी ने किया वो गलत किया, राहुल गांधी जी ने बोले। पांडे जी देखिए प्रदीप जी, राहुल गांधी से किसी भी प्रकार की अपेक्षा करना भारतीयता के लिए मैं तो बिल्कुल सही नहीं मानता हूं, और उनसे मुझे तो कोई अपेक्षा नहीं है, क्योंकि ये हमारे देश का दुर्भाग्य है। अब तक का सबसे बड़ा, सुनिए तो, अब तक का सबसे बड़ा घटिया मैं कहता हूं, और जिसकी मानसिकता ही ध्वस्त हो चुकी है, जो विदेशों में जाकर देश का अपमान करता है, जो विदेशों में जाकर देश का अपमान करता है, विदेशों में जाकर हिंदुस्तान पे टिप्पणियां करता है, ऐसे से आप क्या ऐसा नहीं है सर, क्या अपेक्षा करते हैं? मुझे कोई अपेक्षा नहीं है सर। आप अगर ऐसी भाषा, सर अगर आप ऐसी भाषा राहुल जी ने जो बताया था जाति जनगणना का, वो करवाना पड़ा। अगर वो वैसे ही आपने जैसे कहा वैसा होते तो आप नहीं करवाते। आप 700 किसानों को मारने के बाद वो कृषि बिल वापस नहीं लेते। सर राहुल गांधी जी वो शख्स हैं, आपके आंदोलन, अरे पांडे जी सर, हम किसी के खिलाफ, सर हम खुद हिंदुत्ववादी हैं। पांडे जी एक मिनट, भरत सोनी साहब एक सेकंड, भरत सोनी साहब एक सेकंड, और अरे एक सेकंड, शैलेश पांडे जी प्लीज आपके बीच में सर प्लीज, शैलेश पांडे जी प्लीज। मैं टोकना चालू करूंगा तो बोलने नहीं। शैलेश पांडे जी एक सेकंड और मैं बोलता हूँ शैलेश पांडे जी, आप बिल्कुल सर, आप ये लोग बात, तो सच ही बोलते हैं सर। राजू जी, पहली बात तो मैं ये कहता हूँ कि चैनल पे, न्यूज चैनल पे सुरक्षा के विषय पर, ये विषय पर टीका टिप्पणी करने का कोई डिबेट नहीं। शैलेश पांडे जी एक सेकंड, मैं कोई डिबेट नहीं करूंगा ऐसे। शैलेश पांडे जी एक मिनट, मेरा बाकी किसी चीज पर
मेरी बाकी किसी चीज पर कोई आपत्ति नहीं है। राहुल गांधी जी वो हैं जिन्होंने सबसे पहले अपने चाचा को मरते हुए देखा एयर क्रैश में, उसके बाद उनकी दादी उनके सामने मरी, सतवंत सिंह और बेअंत सिंह ने उनको मारा, और उसके बाद उन्होंने अपने पिताजी की लाश जो भी पूरी नहीं मिली टुकड़े टुकड़ों में वापस आई। वो शख्स हैं सर। हर कोई ये बोल रहा था, पूरी बात सुन ले सर, प्लीज प्लीज प्लीज, पूरी बात सुन ले सर। हर कोई ये बोल रहा था कि ये गांधी परिवार जो है, सोनिया जी वगैरह वगैरह वगैरह, ये सब भारत से उठ करके भाग जाएंगे। कहीं नहीं गए, अभी तक यही हैं सर। हर कोई देशभक्त है इस देश में, याद रख लीजिए, भले वो राहुल गांधी हो, भले वो नरेंद्र मोदी हो, भले वो जो मर्जी। जितने भी ऑपोजिशन के लोग हैं सब देशभक्त हैं। बट पांडे जी हैज गॉट अ राइट। भरत सोनी साहब, अगर राहुल गांधी जी क्रिटिसाइज कर रहे हैं तो पांडे जी को हक है कि बोलना कि गलत बोला है आपने। आप कैसे ऑपरेशंस को गलत बोल सकते हो? दैट इज व्हाट पांडे जी बोलिए। देखिए प्रदीप जी, राजीव जी और सभी प्रवक्ताओं से मेरा यही विनती है, मेरा यही कहना है कि जब देश ये आज हम आतंकवाद के खिलाफ लड़ रहे हैं, और विषय क्या था? आतंकवादी हमले का जवाब देना, आतंकवादियों को मारना। हमने पाकिस्तान के अंदर घुसकर 9 से ज्यादा आतंकवादी ठिकानों पर हमला किया, 100 से ज्यादा आतंकवादियों को मारा, और देश के अंदर छुपे हुए आतंकवादियों को भी हमने अभी कल परसों में 12 से ज्यादा आतंकवादियों को मारा है, उनके घर को उजाड़ा है, हजारों लोगों को अरेस्ट किया है। और आप मोदी जी क्या कहते हैं? आप उन पर विश्वास मत करो। अरे लेकिन देश की सेना पे तो विश्वास करो। देश की सेना के जो नायक है उन्होंने कहा कि नहीं, विदेश मंत्रालय ने यह कहा कि नहीं कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है, अभी भी हम जो भी इसके अंदर लोग किसके पीछे कौन है, इसके पीछे दिमाग क्या है, हम किसी को भी नहीं छोड़ेंगे और छोड़ेंगे। और हमारे विदेश मंत्रालय ने तो इतना भी कहा है पाकिस्तान को कि पाकिस्तान पीओके खाली करे, पीओके हमारा है। और अमित शाह देश के फौलादी गृह मंत्री देश के पवित्र संसद से बोल चुके हैं कि पीओके के लिए हम अपनी जान भी दे देंगे और पीओके लेकर ही रहेंगे। पीओके हमारा देश का अभिन्न अंग है। लेकिन मैं हाथ जोड़ के विनती करूंगा सभी से कि कृपया करके इस तरह से ओपन चैनल में, न्यूज चैनल में डिबेट करते हुए देश की सुरक्षा पर प्रश्न ना उठाएं, न तो चर्चा करें। चर्चा भी नहीं होनी चाहिए कि हमें क्या, ये क्यों नहीं हुआ, वो क्यों नहीं हुआ, और ये करेंगे वो करेंगे। अरे देश की सेना पे आपको भरोसा है ना? देश की सेना का शौर्य का लोहा आज पूरी दुनिया मान रहा है। आज चाइना हैरान हो गया है कि वो चाइना के जो ड्रोन थे वो खिलौनों की तरह हमारी भारत सेना ने उसको तोड़ मोड़ के फेंक दिया। आज अमेरिका जैसा देश भी हतप्रभ है कि आज हमारे जो हिंदुस्तान के मेक इन इंडिया जो हमारे इक्विपमेंट है, चाहे आकाश हो, ब्रह्मोस हो, आज कितना महान काम किया है देश के लिए। आज चर्चा होनी चाहिए ब्रह्मोस पे, चर्चा होनी चाहिए आकाश पे, चर्चा होनी चाहिए सुदर्शन चक्र पे, चर्चा ये होनी चाहिए। सर, we've got a new order from Armenia. आपको शायद मालूम होगा। रशिया हमसे बोल रहा है कि आइए हिंदुस्तान और रशिया मिलकर हम दोनों मिलकर हथियार बनाते हैं। हम जो ये S-400 था, S-500 हम हिंदुस्तान के साथ मिलकर बनाना चाहते हैं। ये कितने गौरव की बात है देश के लिए भी, सेना के लिए भी, और इस वक्त की सरकार के लिए। तो हमें तो आपकी जानकारी के लिए करनी पड़ेगी ना, सराहना करनी पड़ेगी। और दूसरी बात, आप तो कहते हो ना ये बुद्ध का देश है, ये बुद्ध का देश है, ये बुद्ध का देश है। अरे बुद्ध का देश है तो युद्ध तो नहीं चाहिए ना? क्यों? क्योंकि हमें 2047 तक देश को संपूर्ण विकसित राष्ट्र बनाना है। युद्ध किसी भी देश के विकास में बाधक होता है। हमने ईंट का जवाब पत्थर से दिया। हमारे 25 के 28 के 150 लोगों को मारा। शैलेश पांडे जी, हमें भी विकास की ओर आगे जाना चाहिए। हमने ये स्पष्ट तौर से कहा है ऑपरेशन। सर, कैन आई गो टू आरजू खान साहब नाउ? सर, शैलेश पांडे जी, एक छोटी सी जानकारी है, all of you will be very pleased to hear. दो इंफॉर्मेशन है इनफैक्ट। नंबर वन, we have just signed a $700 million deal with Armenia to provide them with the older version of the Akash, और उसका पहला जो उसके 19 सेट्स जो हैं, जिसमें एक्चुअली कितने मिसाइल होते हैं हमें मालूम नहीं है, वो डिलीवर हो चुके हैं। पेरू wants to buy Akash from us, Venezuela wants to buy Akash from us, Vietnam is buying BrahMos, and Philippines is buying BrahMos, and the Russians have said they want to develop the Sukhoi 57, which is the 5th generation aircraft, stealth aircraft, jointly with India, and the clause also includes transfer of technology and so on and so forth. The Americans of course want us to buy the F-35.
Now I am leaning more towards the Sukhoi 57 क्योंकि रशिया इज वेरी रिलायबल। अमेरिकनों का कुछ मालूम नहीं है सर, लड़ाई के दौरान स्पेयर पार्ट्स ना दें कुछ मालूम नहीं है उनका। They have never been reliable to anybody. सीधी बात है। दूसरी जानकारी, I think we must congratulate our नीरज चोपड़ा. He has just won the silver at the Doha Diamond League और उसने he has broken the 90-meter barrier. For the first time, he has thrown beyond 90 meters at 90.23, and I think that boy has done us proud. Even the Prime Minister has congratulated him today. जी प्रदीप जी आप कुछ बोलने? No, I saw the fighters that India is producing. अगर वो fighters vertical takeoff भी ले रहे हैं, then we have reached a new एक जबरदस्त jump लिया है where aircraft manufacturing is concerned. Now this is now you want जिस प्रकार बोले पांडे जी। राजीव जी मुझे एक दूसरे डिबेट Right sir, thank you very much. God bless you sir. So nice of you for joining us. नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद जय हिंद राजीव सर, जी, जय हिंद, प्रदीप जी नमस्कार। और हमारे दोनों भरत सोनी प्रवक्ताओं साहब, का भी हाँ। मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे धन्यवाद। सर वो हम एक है, हमारे विचार एक है। भारत माता की जय, वंदे भारत मातरम। माता की जय, वंदे मातरम, हर हर महादेव, माता की जय। हर हर महादेव सर, हर हर महादेव। हम सब एक है। हम आजू सब खान एक साहब है। कहाँ गए? पूरा भारत एक है। अरे आरजू खान साहब कहाँ गए? दिख नहीं रहे, चले गए। He's already left. अरे यार क्या है? Anyway, भरत सोनी साहब, this is for you. Now the point is, as far as we are concerned, हम लोगों का जो defense equipment है sir, that has created a new market everywhere. By the way, the foundations for it were laid by Dr. Manmohan Singh. Let's not forget that. And look at where we are today. And BrahMos, by the way, the initial amount came from P.V. Narasimha Rao sahab, 1994 में. So it's kind of fantastic, don't you think? I mean, Yes. yeah, India will now become a net exporter of weapons in the next 3-4 years. That will be fantastic. What do you think, sir? So we are very much proud of that. And sir, see, earlier also I had said in 2-3 debates before also that say we are proud of our technology, technological development. We are proud of our leaders, who's maybe from the BJP, RJD, or any other party. But this is an ongoing process, and we have to keep putting things in order and keep buying things like such things and develop such equipments for defense forces. So that is a part. But sir, what I wanted to ask the BJP spokesperson was, sir, अगर जो देश सुरक्षित हाथों में है, तो ये इतने लोग आके मार के चले गए, वो कहाँ जमीन खा गई, आसमान निकल गया, वो गए कहाँ? और सर इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? अभी तक नहीं मिले, चारों के चारों अभी तक नहीं मिले सर। वही सर, हमारा देश इतना सुरक्षित हाथों में है, हमारे पास विश्व की सबसे बड़ी ताकत और विश्व की सबसे बड़े इक्विपमेंट्स है और इंटेलिजेंस है हमारा। सर हमारा इंटेलिजेंस इतना पावरफुल है कि वो परिंदा भी पर मारे तो बोल रहे हैं वो वहां पर परिंदा ने पर मारा है करके। अगर वो लोग इन 5 लोगों को नहीं अभी तक नहीं ढूंढ चाहे तो सर जो 4 या 5 रहेंगे सर, हाँ, तो उन लोगों को, और वो सर लगभग 90 से 100 किलोमीटर हमारे देश के अंदर आए, बहुत पहले से आए हुए थे। They were here for a long time. तो सर बहुत पहले से तो आए थे, तो और खतरा है सर। ऐसे सेल्स और भी हैं। Sleeper cells बहुत है। Sleeper cells are everywhere across the country. प्रदीप जी, इसकी कोई जिम्मेवारी लेगा कि नहीं? लेनी नौकरी पड़ेगी के जैसा जैसा होगा ये सर, लेनी पड़ेगी सर। We don't have a choice. The government has to take responsibility. They are in power right now. एग्जैक्टली। And we have got more power now, as you said. और भी हमने अपने इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को स्ट्रेंथन किया है, NIA को स्ट्रेंथन किया है, हमारे इंटेलिजेंस नेटवर्क इतने सारे 3-4 लेयर्स है, और कश्मीर में इसरो का सैटेलाइट फोकस करके एक एक चीज बॉर्डर वगैरह मॉनिटर कर रहे हैं। तो व्हाट यू आर सेइंग आल्सो इज स्लाइटली इनके ध्यान में नहीं आया होगा सर, इनके ध्यान में नहीं आया होगा Sir, the Intelligence Bureau, let me tell you very frankly, the Director General of the IB is a Mr. Deka. He has been given an extension of a year. Now, if the IB had failed to give information, why is he still there? He should have resigned. एग्जैक्टली। So, which means, from whatever we have heard, the intelligence fellows, they actually gave information to this effect on the 2nd or 3rd of April कि भाई कुछ होने वाला है. Let's be very clear. ये intelligence गई थी, ये this is the buzz all around. Now there is no way of confirming. Let's be very clear. हो सकता नहीं गई हो, और अगर गई भी हो, it may have been ignored.
लोगों ने कहा होगा अभी 1 साल से कुछ नहीं हो तो आ गया और क्या होने वाला है. Quite possible they may have been overconfident. But all I'm saying is whether it is Pulwama, whether it is Uri, or whether it is Pahalgam, I don't see any action being taken against anyone for Exactly. either intelligence or operational failure. Where is the action? You know, Do you see any action? Soni sir? Sir, we have not seen any action. And sir, why such things are taking place before they, sir, this is just एक मैं एक संदेह पैदा करता हूं सर, एक डाउट आता है मन में कि ये सारी चीजें इलेक्शन के पहले होती है और उसके बाद इलेक्शन जीता जाता है. सर इसमें तो इलेक्शन नहीं जीत पाएंगे. but you know, Bharat Soni साहब, I liked what खड़गे साहब ने जो प्रश्न उठाया. 19th को प्राइम मिनिस्टर was going to address a big meet and public meet in Srinagar. वो कैंसिल हो जाता है. वो कैंसिल हो जाता है because intelligence input था कि there is something wrong and you should not go there. And probably Prime Minister cancelled his visit to Srinagar and he didn't go there. But then there was input. और 22 को ये हो जाता है. And 22 को not Srinagar, but it happens in Pahalgam. So definitely we need to understand that there must be some intelligence failure. The point is, Pradeep ji, there must be some official clarification on this. और जैसे पांडे साहब का ये कहना है कि भाई इसके ऊपर कोई डिबेट नहीं होनी, which is utter nonsense. Let's be very clear. We are a democracy. We have to report. We have to analyze. We don't have to give any secret or confidential information, certainly. But we do have the right to question our government because it's a democracy. They better get used to it. Let's be very clear. And I don't disagree with the ceasefire. Let me tell you very frankly. I say thank God the ceasefire has taken place. Yes. Because we were suffering. सर ऐसा है, पाकिस्तान तो भूखा नंगा है, गली का गुंडा है, उसको क्या होने वाला है? अगर आप पत्थर मार देगा दूर से वो. सर आप 3-4 दिन और भी अगर कैरी आउट कर देते, जैसे ब्रह्मा जलानी साहब बोल रहे हैं, थोड़े और एयरपोर्ट आप डिस्ट्रॉय कर देते तो उसको क्या फर्क पड़ने वाला है? उसको कुछ नहीं, वैसे भी भूखे नंगे हैं सर. हर रोज कटोरा लेकर के इधर से उधर फेंकते हैं, अल्लाह के नाम पे दे दे, इसके नाम पे दे दे, इसके नाम पे दे दे. दैट्स ऑल दे आर डूइंग. भिखारी लोग हैं, तो किसी भिखारी को पीट करके क्या मिलने वाला है? सो वी आई थिंक पॉसिबली we made the point that we had to make and that's it. Now let's plan for the future. Now what we are seeing further is जिस प्रकार से राहुल गांधी जी के visits in Bihar, उन पे FIR जिस प्रकार से फाइल होते जा रहे हैं, That's terrible. उनको कई दलित जैसे एलिगेशंस है, राहुल गांधी जी का खुद की ट्राइबल से मिलने नहीं दे रहे, ट्राइबल स्टूडेंट से मिलने नहीं दे रहा. Now this seems to be apparent because I think first time कोई पॉलिटिकल लीडर पे एंड ऑपोजिशन लीडर उस पे FIR फाइल होता है to visit some places in Bihar, Darbhanga. तो that seems to be थोड़ा questionable होने लगा कि should any government go to this extent of filing FIRs against opposition leaders for public meet? भरत सोनी साहब. सर देखिए, राहुल जी ने वहां जाकर वो वहां के छात्र स्टूडेंट्स को मिलना चाहते थे और स्टूडेंट्स को ये बताना चाहते थे, और ये सर पहले से कुछ ये नहीं था. वहां पर जो दंगा हुआ था उसके लिए वो स्टूडेंट्स को मिलने जा रहे थे, है ना सर. सर तो अपोजिशन लीडर का, सर बेलची जैसा जब ये हुआ कांड हुआ था तब उस समय भी इंदिरा जी गई थी, नहीं जा सकती थी तो हाथी पे बैठ के गई थी. और आज अगर हमारा देश संविधान में मानने वाला है, हमारा देश सही में डेमोक्रेटिक देश है, तो हमें अपोजिशन लीडर को क्यों नहीं मिलने देने जा रहा है? और सर वहां उसने कोई डिस्ट्रक्टिव बातें नहीं की. उन्होंने क्या कहा कि पारदर्शक जाति जनगणना हो और दूसरा प्राइवेट शिक्षा संस्थान जो प्राइवेट कॉलेजेस है, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, उसमें रिजर्वेशन लगे एडमिशन में और शिक्षा के ऊपर. सर तीसरा एसटी का सब प्लान जो है वो सख्ती से लागू हो. इसलिए तीन ही बात बताई. उसने कुछ नहीं बोला दूसरा कि मुझे आने नहीं दिया, मुझे ये नहीं. वो खाली बताते रहे कि आप मुझे जाने दीजिए, आप मुझे जाने दीजिए. और सर जिस प्रकार से उनको घेरा जा रहा था, जिस प्रकार से पुलिस उनको जो धकेल रही थी, वो एक अपोजिशन लीडर के लिए. That's good news for you. That means you're creating an impact, sir. That means you're creating a big impact. Let's be very clear. सर किसी भी ऑपोजिशन लीडर के खिलाफ जो FIR होता है, इसका मतलब जो रूलिंग पार्टी है वहां की वो दबाव में आ गई है. सीधी सादी बात है. नहीं तो FIR तो कोई करता ही नहीं है. ज्यादातर ऐसा कुछ होता है तो उनको बोल देते हैं कि भैया आगे नहीं जा सकते, सॉरी, दैट्स इट. So really, Rahul Gandhi ji, we are setting, Rajiv ji, we are setting a bad precedent. सर इसके बाद भी कुछ लोग आएंगे सत्ता पे
वो भी ऐसे अपोजिशन लीडर के खिलाफ एफआईआर फाइल। सर जब आप भी आओगे आप भी यही करोगे, मुझे मालूम है ना, जब आप आओगे आप भी यही करोगे, यही होने वाला सर ऐसा नहीं होना चाहिए सर। सर वी आर ऑन अ प्रोग्रेसिव पाथ। हम लोग एक देश की इतनी बड़ी शक्ति बनने जा रहे हैं और उसमें अगर आप इस प्रकार से करते हो तो ये गलत मैसेज जाता है। आई एग्री और आई एग्री बट वी अंडरस्टैंड अगर लोकल लीडर्स पे एफआईआर होता तो हम लोग समझ भी सकते थे, बट यू कांट हैव अ एफआईआर अगेंस्ट द नेशनल लीडर। आई मीन दैट्स And LOP FIR, in any event, they will have to take permission of the speaker whether to proceed or not, etc. Because he has a cabinet rank. Let's be very, very clear. Speaker साहब की permission लेनी पड़ेगी, and so on and so forth. But anyway, that's a separate issue. But I'm very impressed with the way Rahul Gandhi ji is working at the moment, and I hope he continues in this way, and I hope he says goodbye to people like Mr. Manishankar Iyer and Dr. Sam Petroda. I hope he doesn't talk to them. Very frankly, जब वो उनसे बात नहीं करते हैं तो बड़ा फसला चलता है कांग्रेस का सर, सीधी सादी बात है। But in any event, even as far as Mumbai is concerned, all of you are doing a wonderful job, as we have seen. The MRCC has been resurrected. Had it not been for this thing with Pakistan, you already had planned out so many rallies over here in Bombay, in Yes. Mumbai, which you have had to cancel. But all the same, I think you're doing a wonderful job. Keep it up, sir. अब जाकर के लग रहा है कि मुंबई में जान आइए, लग रहा है सर, मुंबई कांग्रेस के अंदर वापस जान आइए। I know, Varshatai Gaikwad is not the most popular among all the congressmen. They don't seem to like her, but all the same, she's doing a very good job. But That's rebellion my has opinion. always been one of the major problems where MRCC is concerned. Rebellion बहुत जबरदस्त, right? शुरू से, मुरली मुरली देवरा देवरा हो, साहब के वक्त गुरदास से, कामत हो, कृपा शंकर हो, I mean, you always Everybody. had rebellion. हमेशा आपके इतने गुट रहे हैं, who have never been able to get along with each other, but you have still been winning. You have stopped winning only now. I hope you start winning again. राजीव जी, मैं एक्टिव पॉलिटिक्स में 77-78 से हूँ। उस समय भी जो भी प्रेसिडेंट हुआ करते थे उनके तरफ विद्रोह होता था। जी, मुरली भाई के अगेंस्ट भी हुआ। यूथ कांग्रेस उस टाइम पे सर यूथ कांग्रेस इतनी स्ट्रांग हुआ करती थी कि पैरेलल बेसिक कांग्रेस भी चलती थी। Correct? बेसिक कांग्रेस को आईना दिखाती थी यूथ कांग्रेस। Yes, एंड sir. सी सर लीडर्स लाइक गुरुदास कामत, ये सब यूथ कांग्रेस में से आए हुए हैं। जी दुरुस्त बात, आए। और सर उनका प्रेजेंटेशन स्किल्स, उनका जो कुछ भी चीज हाथ में लेते थे वो उसके पीछे पड़े रहते थे। आज नहीं है वो लोग, लेकिन हम लोग वैसे प्रकार की यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई बनाना चाहते हैं। लेट सर, अस उस सी वक्त- हाउ फार वी आर सक्सेसफुल। आई होप यू सक्सीड। लेकिन उस वक्त सिर्फ एक चीज, छोटी सी चीज बोल रहा हूँ आपको, उस वक्त लोग ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक नहीं खेलते थे ना, असल में सड़क पे जाते थे, लोगों से मिलते थे। बिल्कुल वेरी बिल्कुल फ्रैंकली स्पीकिंग, जैसे अब आप लोग कर रहे हैं, जो आप लोगों ने वापस शुरू कर दिया है, आई होप यू कैरी ऑन विद इट, बिकॉज व्हेन यू कम ऑन द रोड दैट क्रिएट्स अ बिगर इम्पैक्ट देन एनीथिंग एल्स दैट यू कैन डू। जितने मर्जी आप ट्वीट करते हैं, जितने मर्जी आप इंस्टाग्राम पे पोस्ट लगाते हैं, जितने मर्जी आप एफबी पे पोस्ट लगाते हैं, कुछ फायदा नहीं है सर उसका। लेट्स बी वेरी क्लियर, बट ऑल द सेम, congratulations to you for rejuvenating the Congress. I hope you continue. That's all that one can say. थैंक यू सर। And congratulations for the fact that a congressman, Dr. Shashi Tharoor, is going to be leading the delegation to the United Nations of the Government of India. Thank you very much, sir. Namaskar. Great pleasure as usual talking to you, sir. Namaskar. सेम हियर सर। Namaskar, थैंक यू। namaskar. Well, Pradeep ji, that's just about it as far as tonight's show is concerned. Notwithstanding the fact that Arzu Khan Saab just left without even telling us. Shailesh Pandit ji, of course, was very courteous. He said that he had to leave, he had to go for some other show, and good for him. But it was good to have Arzu Khan Saab today on the show. और जो आरजू खान साहब ने जो अपने इमोशंस, जो अपनी भावनाओं को जो व्यक्त किया, मैं आपको बता रहा हूँ सर, सड़क पे लोगों की भावना वही है। वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग, लोग अभी तक हैरान हैं कि सीज फायर क्यों हो गई। अब प्रॉब्लम क्या है कि उसको हर एक को एक्सप्लेन नहीं कर सकते सर। लेट्स बी वेरी क्लियर। But as you said, even you agreed, and I also agree, the ceasefire was right, absolutely wanted. Absolutely right. And coming from Trump, so it was settled totally. I mean, there's no problem. Neither of them would have called a ceasefire and nobody would have agreed. Modi saying or Shahbaz Sharif would never say that. So somebody as strong as Trump saying there's a ceasefire, I've stopped. It really cooled down, and India actually did what it wanted to do. Hit the airports, hit the terror cap pads, and you can see the destruction already. Now slowly, as you say, all the media is slightly waking up to the truth that there has been damage across the border. Sir, actual hostilities help no one. Let's be Yes, very clear. exactly. At the end of the day, जो आप असल में तोड़फोड़ करते हैं, कुछ करते हैं, except for it serves as a demonstrator of what India can do. Let's be very clear.
what has happened in these last 2-3 days, it has served as a very good demonstration of what India is capable of, and for the future. And the Chinese, of course, will be learning from their faults and where their systems failed. The Indians, of course, will be learning even further as to what they have to do more to damage these places much more. So, I hope there is no next round of hostilities, and whatever India has to do will be by using proxies or by using somebody else. I hope. That's all that I can say. Because I don't think we should lose any more lives. In fighting an enemy like Pakistan, our real enemy again is China. It is not Pakistan. आखिर में लड़ाई सर चाइना के साथ है, पाकिस्तान के साथ नहीं है. पाकिस्तान टटपुंजिया है. Pakistan is a dalal. Pakistan is a pimp. Let's be very clear. It's a pimp of China today. The entire Pakistan is mortgaged to China. China इस वक्त मालिक है पाकिस्तान का, तो अपने मालिक के खिलाफ वो कुछ कर नहीं सकते हैं. हम लोगों को मालिक के साथ compete करना है, टारगेट नहीं करना है, compete करना है. और compete ऐसे करना है कि we should move ahead of China. That's what we need to do. Well, that's what I think. It's a big challenge, but then I think with the leadership right now, it's possible. Right, I hope so. Well, that's just about it from both Pradeep ji and myself. आप सब लोगों को नमस्कार. देखते रहें नेशन नाउ. सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है. वो घंटी भी बज गई है भाई. The fastest growing channel. जी of the बिल्कुल nation. बिल्कुल. प्लीज डू सब्सक्राइब टू द चैनल. और प्रदीप जी और मेरी तरफ से और पूरी नेशन नाउ की टीम की तरफ से आप सब लोगों को नमस्कार. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी. वंदे मातरम. Vande Mataram. भारत माता की जय. Bharat Mata ki jai.